بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ پیٹرول 5 روپے 66 فی لیٹر سستا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپیہ 39 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے شہریوں کا، جانتے ہیں توقیر رقم سے۔ جی توقیر۔ جی دیکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے اور تقریباً 5 روپے کمی کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت میں، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ تقریباً 263 روپے مقرر کی گئی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو شہری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملا جلا رد عمل دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے، پھر کم کر دی جاتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کمی ہوئی ہے، کوئی کیا کہو گے؟ 5 روپے ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں، ہم کسی کے لے کے استعمال کرتے ہیں۔ موٹر سائیکل ہے تو سائیکل پڑ کے اچھا چلے جی، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ابھی تو رات کا ٹائم ہے تو اس وجہ سے شاید جو لوگ ہیں وہ بہت کم دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، لیکن جو لوگ آ رہے ہیں ان سے جب آف کیمرہ ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ 1 روپیہ کمی اضافہ 5 روپے 6 روپے تقریباً اضافہ کیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ 5 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ تو 1 روپے اگر دیکھا جائے تو کمی کی گئی ہے، تو یہ بہت زیادہ کمی نہیں ہے اور شہری اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں زیادہ کمی کی جائے اور تقریباً 150 روپے لیٹر تک پیٹرول کو لایا جائے، جس کے بعد ہر انسان کی رینج کے اندر جو ہے یہ پیٹرول آتا ہے اور 1 روپیہ پیٹرول کی کمی جو کہ بظاہر 5 روپے ہے، یہ نامناسب کمی ہے اور اس کو مزید کم کیا جائے۔ جی بالکل، شہریوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر بات کریں گے ایئر کوالٹی انڈیکس کی۔ فضائی آلودگی پھر بڑھنے لگی۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 192 ریکارڈ کیا گیا۔ بیدیا روڈ پر سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 342 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن 290، شادمان 244، گلبرگ میں شرح آلودگی 229 ریکارڈ کی گئی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اعتبار سے آج دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 192 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو شہر کی آب و ہوا ہے وہ مضر صحت ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے وہ بیدیا روڈ کے علاقے میں 342 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیگر علاقوں میں علامہ اقبال ٹاؤن میں 294 ہے، شادمان میں 244 ہے، گلبرگ میں 229 ہے، ایف سی کالج میں 207 ہے، عسکری 10 میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو شرح ریکارڈ کی گئی ہے وہ 199 ہے، سول سیکریٹریٹ میں 199 ہے، اسی طرح پنجاب یونیورسٹی میں 168 ہے، شارع قائد اعظم مال روڈ پر 143 ہے، جبکہ جو سمن آباد ہے وہاں پر سب سے کم جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ 117 ریکارڈ کی گئی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو شہری ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کا استعمال جو ہے اس کو لازمی بنانے کا کہا گیا ہے۔ جی حسنین اولک، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر بات کریں گے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں نے ماحولیاتی اصولوں کو رون ڈالا۔ سڑکوں کی کھدائی، سیوریج لائنز کی تعمیر سے اڑتی دھول آلودگی میں اضافہ کرنے لگی۔ اسموگ میں اضافے کے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں، کہیں سڑکوں کی کھدائی تو کہیں سیوریج لائنوں کی تنصیب کا کام ہو رہا ہے۔ تاہم بیشتر مقامات پر ماحولیاتی SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ دھول اور مٹی سے جہاں فضا آلودہ ہو رہی ہے، وہیں راہگیروں کو بھی سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا سامنا ہے۔ ترجمان ادارہ تحفظ ماحول پنجاب ساجد بشیر کے مطابق مئی کے مہینے سے واسا LDA سمیت مختلف محکموں کو ہدایات جاری کی تھیں کہ ترقیاتی منصوبوں کے دوران پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے، مگر بیشتر مقامات پر SOPs کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 5ویں مہینے کے اندر بھی ڈپٹی کمشنر کو بھی ہم لوگوں نے یہاں سے ایک جو لیٹر ہے وہ ہم نے لکھا تھا اور ہم نے ان کو کیٹیگوریکلی بتایا تھا کہ آنے والے اسموک سیزن کے اندر یہ جو ڈسٹ ہے یا جتنا بھی مٹیریل پڑا ہوا ہے یہ بہت پرابلمٹک ہوگا AQE کی ریڈنگس کو لے کے، تو لہٰذا آپ اس کو سارٹ آؤٹ کروائیں۔ ترجمان کے مطابق اب ان ترقیاتی منصوبوں کے کانٹریکٹرز کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ ماحول دوست اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسموک سیزن آ گیا ہے اور ابھی تک کافی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی کیونکہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، مونسون یا جو بھی مسئلہ تھا۔
اب ہم نے ان کو SOPs آلریڈی جاری کر دی ہیں اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ واٹر اسپرنکلنگ مسٹ ان کو کرنی ہوگی. اور اب بھی اگر یہ نہیں ہوگا تو گورنمنٹ ایجنسیز جن کے بھی یہ پروجیکٹس ہیں اور انہوں نے آگے جو کانٹریکٹر ہائر کیے ہوئے ہیں, اب ہم ان کے خلاف نا قانونی کارروائی جو ہے نا وہ کریں گے اور ہم کانٹریکٹر کے اوپر جو ہے نا ہم اس کے خلاف استغاثہ فائل کریں گے. ترقیاتی منصوبے شہری ترقی کا مظہر ضرور ہیں، لیکن اگر ماحول کا خیال نہ رکھا گیا تو یہی ترقی شہری صحت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں میں نکلنے والے دھوئیں کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں میں ماحولیاتی اصولوں کی عدم پاسداری بھی اسموگ میں اضافے کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ماحولیاتی SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں فضائی آلودگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ پنجاب حکومت کا لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کمیشن صوبے میں مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم اور شفافیت یقینی بنائے گا۔ مقامی حکومتوں کی آمدنی اور اخراجات کا سالانہ جائزہ لیا جائے گا۔ مقامی حکومتوں کے لیے فائنانس ایوارڈ جاری کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ پنجاب فائنانس کمیشن کے چیئرمین ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کمیشن کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت اہم مالیاتی اختیارات حاصل ہوں گے۔ کمیشن صوبائی وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولے تیار کرے گا۔ مقامی حکومتوں کی آمدنی اور اخراجات کا سالانہ جائزہ لیا جائے گا۔ کمیشن پنجاب حکومت کو مالیاتی سفارشات پیش کرے گا۔ مقامی حکومتوں کے لیے فائنانس ایوارڈ جاری کیا جائے گا۔ کمیشن فائنانس ایوارڈ کے ذریعے فنڈز کی تقسیم کا فارمولہ طے کرے گا۔ بلدیاتی اداروں کے محصولات اور ٹیکس نظام میں بہتری کی تجاویز دی جائیں گی۔ مالیاتی شفافیت اور نظم و ضبط کے لیے سفارشات پیش کی جائیں گی۔ کمیشن مقامی حکومتوں کے ترقیاتی بجٹ کی نگرانی کرے گا۔ بلدیاتی اداروں کے قرضوں اور گرانٹس پر اپنی رائے دے گا۔ کمیشن اپنی سالانہ رپورٹ پنجاب حکومت کو پیش کرے گا۔ وزیر خزانہ پنجاب فائنانس کمیشن کے چیئرمین ہوں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی مشاورت سے 6 اراکین اسمبلی کمیشن میں شامل کیے جائیں گے۔ فائنانس، بلدیات اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکرٹریز بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ مقامی حکومت اور مالیات کے 4 ماہرین جن میں ایک خاتون کو لازمی شامل کیا جائے گا۔ مقامی حکومت سے ایک سربراہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کریں گے۔ چیئرمین کی غیر حاضری میں کو چیئرمین اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کمیشن ضرورت کے تحت کسی ماہر کو مشاورتی حیثیت میں شامل کر سکتا ہے۔ پنجاب فائنانس کمیشن میں مشاورتی رکن کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ کمیشن کے فیصلے خالی نشست یا ساختی نقص کی بنیاد پر غیر مؤثر نہیں ہوں گے۔ کمیشن کے اراکین کو حکومت کی جانب سے مقررہ معاوضہ اور الاؤنسز ملیں گے۔ کمیشن کے اراکین کے مالی معاوضے میں مدت کے دوران کمی نہیں کی جا سکے گی۔ مقامی حکومتوں سے قبل جائیداد منتقلی کا عمل مکمل ہوگا۔ کس مقامی حکومت کو کون سا اثاثہ یا ذمہ داری منتقل ہوگی، سیکرٹری بلدیات کی منظوری سے تعین ہوگا۔ نئی مقامی حکومت تحلیل شدہ ادارے کی جائیداد، افسران، واجبات کی جانشین ہوگی۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کے اثاثوں واجبات کی منتقلی کا طریقہ کار واضح کر دیا۔ مقامی حکومتوں کے انتخاب سے قبل جائیداد منتقلی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ ہر نئی مقامی حکومت تحلیل شدہ ادارے کی جائیداد، افسران، واجبات کا جانشین ہوگا۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی اداروں کے اثاثوں واجبات کی منتقلی کا طریقہ کار واضح کر دیا۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2025 کے متن کے مطابق سیکرٹری بلدیات کی منظوری سے تعین مقامی حکومت کو اثاثہ یا ذمہ داری منتقل کی جائے گی۔ ایک سے زائد علاقوں میں استعمال اثاثے وزیر بلدیات کی منظوری سے تقسیم کیے جائیں گے۔ مقامی حکومت سے غیر متعلقہ اثاثے حکومت کو منتقل کیے جائیں گے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2025 کے متن کے مطابق سیکرٹری کو وزیر بلدیات کی منظوری سے واجبات اور تنازعات کے حل کا اختیار حاصل ہوگا۔ جائیداد کی تعریف میں زمین، عمارت، دفتر، گاڑیاں، آلات اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ گراں فروش بے لگام چینی آٹا پھر مہنگا، شہریوں کو پاؤڈر جیسی چینی فراہم کی جانے لگی۔ 50 کلو کا تھیلا 9100 روپے کا دیا جا رہا ہے۔ حکومتی نرخ 177، دکانداروں کو چینی ہول سیل 182 روپے مل رہی ہے۔ فلور ملز 15 کلو والا تھیلا فراہم کرنے لگے۔ ٹماٹر بدستور ٹرپل سینچری پر ناٹ آؤٹ 300 روپے کلو میں فروخت۔ آلو 100، پیاز مارکیٹ میں 120 روپے کلو ہوگی۔ شہر میں گراں فروشی عروج پر، حکومتی نرخوں پر آٹا اور چینی کی قلت پیدا ہوگی۔ شہریوں کو حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر چینی اور آٹا دستیاب ہی نہیں۔ فلور ملز اپنا 15 کلو گرام کا تھیلا دے رہی ہے۔ ہول سیلز دکانداروں کو چینی بھی پاؤڈر جیسے دے رہے ہیں اور نرخ بھی زیادہ ہے۔ مارکیٹ میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 9100 روپے کا دیا جا رہا ہے۔ حکومتی نرخ چینی 177 اور دکانداروں کو ہول سیل میں چینی 182 روپے مل رہی ہے۔ اسی طرح آٹے کے تھیلوں کی قلت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ گھی لے لیں، آٹا لے لیں، چینی لے لیں، جو اس ٹائم گھی 300-400 روپے کلو تھا، اس ٹائم 600-700 روپے کلو ہوا ہے، جو عام بندے کی پہنچ سے بالکل دور ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کوئی اتنا یعنی کہ تنخواہیں وغیرہ نہیں ہے، وہی معمولی جو 20-25 ہزار ہے، تو اس میں مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا ہے۔
दूसरी जानिब शहर में महंगाई का राज बरकरार है। शक्कर समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे होने लगे। शहर की ओपन मार्केट में शक्कर की कीमत 20 रुपए इजाफे से 320 रुपए किलो होगी। सरफ 10 रुपए इजाफे से 610 रुपए किलो हो गया। घी और चाय समेत दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। घी और ऑयल की कीमत 560 से 575 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। 800 ग्राम चाय की कीमत 1780 रुपए तक पहुंच गई। सारिफीन ने जिला इंतजामिया से महंगाई का नोटिस लेते हुए अशिया की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। टमाटर बदस्तूर 300 किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 100 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपए, जबकि बाजार में 120 रुपए में बेचा जा रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत 270 रुपए, बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 240 रुपए, जबकि बाजार में 250 में बेचा जा रहा है। सोने की कीमतों में तेजी बरकरार। आज फिर सोना 4500 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरेट तोला सोना 4,52,000 का हो गया। 22 कैरेट तोला सोने की कीमत 4,14,000 रुपये तक जा पहुंची। 21 कैरेट तोला सोना 3,95,500 रुपये का फरोख्त हो रहा है, जबकि 10 ग्राम चांदी 6,600 रुपये की होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमतों में तेजी बरकरार है। आज फिर सोना 4,500 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरेट तोला सोना 4,52,000 का हो गया है। एटनिक ने बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी है। योमिया 88 मिलियन गैलन गंदे पानी को साफ बनाया जाएगा। 52 अरब रुपए से प्लांट लगाया जाएगा। पहले मरहले में कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड, गुलशन रावी का सीवरेज पानी साफ होगा। बाबू साबू में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। एटनिक ने हतमी मंजूरी दे दी। मंसूबा योमिया 88 मिलियन गैलन गंदे पानी की ट्रीटमेंट की सलाहियत का हामिल होगा। बाबू साबू के मकाम पर यह प्लांट तकरीबन 52 अरब रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। पहले मरहले में कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी का सीवरेज पानी साफ किया जाएगा। मंसूबे को फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD के ताउन से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबा एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट पर मबनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के तहत मुकम्मल किया जाएगा। MD वासा का कहना है कि मंसूबे की तकमील से शहर की माहौलियाती पायदारी में नुमाया बेहतरी आएगी। बाबू साबू वेस्ट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट के लिए जमीन हासिल की जा चुकी है। लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर दिया। कंपनी ने हाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 111 kV फीडर्स पर जदीद कंडक्टर लगाने का मंसूबे के लिए मटीरियल खरीदारी का आगाज कर दिया है। बिजली चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। कंपनी ने हाई लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 111 kV फीडर्स पर जदीद कंडक्टर लगाने का मंसूबे के लिए मटीरियल खरीदारी का आगाज कर दिया। कंपनी की जानिब से 1300 किलोमीटर जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन कंडक्टर नस्ब किया जाएगा। एरियल बंडल केबल की तनसीब से बिजली चोरी की रोकथाम में मदद मिलेगी। लेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने कंडक्टर की खरीदारी का आगाज कर दिया है, जिसके बाद तनसीब का अमल शुरू किया जाएगा। जदीद कंडक्टर की तनसीब से डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी नहीं हो सकेगी। सरकारी सतह पर पहला पैडल कोर्ट्स बनाने का मंसूबा तैयार। जदीद पैडल कोर्ट्स और तफरी पार्क के 2 प्रपोजल्स तैयार किए गए। अली पार्क गार्डन टाउन के सरफेस पर जदीद पैडल कोर्ट्स बनेगा। मंसूबे पर तखमीना लागत 20 करोड़ से ज़्यादा लगाया गया है। पैडल कोर्ट्स पर डे एंड नाइट खेलने की सहूलत मुयसर होगी। नौजवानों में बढ़ती मकबूलियत के पेश नजर शहर में पहला सरकारी पैडल कोर्ट्स बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। LDA के जदीद पैडल कोर्ट्स और तफरीह पार्क के 2 प्रपोजल्स तैयार कर लिए गए हैं। हाल ही में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक मुकम्मल होने वाले अली पार्क गार्डन टाउन के सरफेस पर जदीद पैडल कोर्ट्स बनाने का फैसला किया गया। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान DG को ब्रीफिंग देकर एक प्रपोजल मंजूर करवाएंगे। मंसूबे पर तखमीना लागत 20 करोड़ से ज्यादा लगाया गया है। पार्क का कुल रकबा 14 केनाल और 3 पैडल कोर्ट्स बनाए जाएंगे। पैडल कोर्ट्स के साथ पार्किंग, वॉक वीजा, ओपन जिम और बच्चों के झूले लगाए जाएंगे। दोनों प्रपोजल्स पर फेस लिफ्टिंग और डिजाइन के साथ 2 मुख्तलिफ शकाल पेश की गयी। पैडल कोर्ट्स पर डे एंड नाइट खेलने की सहूलत मैसर होगी। LDA ऑन सोर्स मंसूबे को मुकम्मल करेगा। LDA ने मंसूबे के लिए PHA से पार्क का NOC ले लिया है। अब यहाँ पर आपको बताएं, कूपर रोड पर खुले मैन होल्स शहरों के लिए खतरा बन गए। खुले मैन होल्स पर ढक्कन के बजाय पौधों की टहनियाँ रख दी गई। शहरियों की जानिब से बताया गया है, जबकि कूपर रोड पर लगी लाइट्स भी अरसा दराज से ख़राब हैं। शहरियों का आला हुकाम से दरपेश मसाइल के नोटिस लेने का मुतालिबा भी सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल से। जी रोमेल।
जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली से मुल्हिका कूपर रोड जो है वो रात के वक्त यहाँ से गुजरने वालों के लिए ख़तरनाक बन चुका है, क्योंकि इस रोड पर नस्ब शुदा जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ज़िला इंतज़ामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट्स की गफलत और नाअहली के बाइस कई माह से बंद पड़ी हैं। और स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से कूपर रोड चौक और उसके अतराफ़ की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल अंधेरे में डूब चुकी हैं, जिससे रात के इस वक्त यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया के दीगर इदारे जिनमें वासा है उसकी भी नाअहली यहाँ पर देखी जा सकती है, और जो खुले मेन होल्स हैं वो लोगों के लिए ख़तरा बन चुके हैं और आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक हादसात होना मामूल बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उनके मुताबिक ये मेरे अकब में मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक खुला मेन होल है, ये कई माह से ऐसे ही है और वासा इंतज़ामिया इस पर ढक्कन रखने की बजाय पौधों की टहनियाँ जो हैं वो लगाकर चली गई है, ताकि रात के वक्त दूर से आने वाली जो ट्रैफिक है वो देख सकें, उसके ड्राइवर्स लोग जो हैं वो देख सकें कि यहाँ मेन होल जो है वो खुला है और अंधेरे में इससे बचकर हमें गुजरना है। बिल्कुल पंजाब असम्बली की जो दीवार है वो भी इस सड़क से जो कि माल रोड से कूपर रोड की जानिब आती है, इस रोड पर ये पंजाब असम्बली की दीवार है और इस दीवार के बिल्कुल सामने के ये मनाजर हैं। कूपर रोड जो है वो भी अंधेरे में डूब चुका है और जो राहगीर हैं उनका ये कहना है कि शिकायत भी की गई हैं इलाका मकीनों की जानिब से, मगर ज़िला इंतज़ामिया का जो शोबा स्ट्रीट लाइट है वो नाकाम है इन स्ट्रीट लाइट्स की फ़नी खराबी को दूर करके इन्हें रोशन करने में। लोगों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस ने और शोबा स्ट्रीट लाइट और वासा इंतज़ामिया की ये जो गफलत है इसका नोटिस लेते हुए। बहुत शुक्रिया। लेस्को में सिंगल फेस मीटर्स का बहरान नया रुख इख्तियार करने लगा। कंपनी में ख़राब और जलने वाले मीटर्स की तादाद 82,000 तक जा पहुंची। ख़राब होने वाले मीटर्स के हामिल सारिफिन को 11 माह के औसतन पर बिल्स जारी होने लगे। लेस्को में सिंगल फेज मीटर्स का बहरान नया रुख इख्तियार करने लगा। कंपनी में खराब और जलने वाले मीटर्स की तादाद 82,000 तक जा पहुंची। लेस्को ने नेपरा कवानीन के मुताबिक मीटर्स तब्दील करने के बजाय भारी भरकम बिल्स भिजवाना शुरू कर दिए। लेस्को नेपरा कवानीन के मुताबिक सार्फिन के मीटर्स बर वक्त तब्दील करने में नाकाम हो गई है। खराब मीटर्स के हामिल सार्फिन को 11 माह की औसतन पर बिल्स जारी होने लगे हैं। लेस्को ने बाद सार्फिन को गुज़िश्ता साल माह सितंबर के यूनिट्स के मुताबिक बिल्स जारी किए हैं। कंपनी में खराब और जलने वाले खराब मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगा दिया गया है। लेस्को के पास सिंगल फेज मीटर्स का स्टॉक ना होने से MCOs नहीं किए जा सके। कंपनी के पास दफातर में पुराने मीटर्स की लेबॉर्टरी रिपोर्ट लेकर दोबारा नस्ब करने का अमल शुरू किया गया है। ताहम दूसरी जानिब मीटर बहरान की वजह से न्यू कनेक्शंस के लिए खरीदारी को आउटसोर्स कर दिया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के काम की असूली मंजूरी दे दी गई। फेडमिक और बैडमिक की ऑडिट रिपोर्ट इजलास में पेश की गई, जिसमें मुतअद्दिद बेहिसाबियों का इंकशाफ हुआ है। इजलास में बताया गया कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर कायम की जाएगी। इजलास में पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का भी असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने फेडमिक और पैडमिक में होने वाली बेज़ाब्ते और माली घपलों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि साबिका दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, मगर किसी ने परवाह नहीं की। उन्होंने हिदायत की कि फेडमिक पैडमिक समेत तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट से मुतालिक पॉलिसी का असर नो जायज़ा लिया जाए और इंडस्ट्रियल स्टेट्स को कामयाब बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन में ज़रूरी तरामीम की जाएँ। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम अज़ला के CEOs हेल्थ की शिरकत, पोलियो मुहिम की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया। मुहिम में ताउन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में तमाम अज़ला के CEOs हेल्थ ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। इजलास में सूबे में जारी पोलियो के खिलाफ मुहिम में परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंसदादी पोलियो मुहिम में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत भी जारी की है। इजलास में बताया गया पंजाब में जारी मुहिम में 1 करोड़ 77 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अलहमरा आर्ट सेंटर में जारी 5 रोज़ा पंजाब मैस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ भी फिल्म, सकाफत, रक्स पर सेशन हुए और मुख्तलिफ थिएटर कंपनीज ने ड्रामे पेश किए।
अलहमरा आर्ट सेंटर में जारी पंजाब मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के आखिरी दिन भी थिएटर, मुकालमे और फनून लतीफ़ा के रंग बिखरते रहे। आखिरी रोज ड्रामों के खुसूसी सेशंस का आगाज हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के नाटक ग्रुप ड्रामेटिक सोसाइटी ने अपना ड्रामा कहो मुझसे मोहब्बत है पेश किया, जबकि दीगर कंपनियों के ड्रामे भी पेश किए गए। हॉल 2 में बच्चों के लिए दिलचस्प ड्रामा ट्रेस पेश किया गया। हॉल 3 में अवामी दिलचस्पी का हामिल ड्रामा मेरी गुड्डी दा ब्याह दिखाया गया। फेस्टिवल के इख्तितामी रोज होने वाले टॉकिंग सेशन में मारूफ हिदायतकार सैयद नूर और अदाकारा रानी की बेटी राबिया हसन ने शिरकत की। थिएटर, सिनेमा और नए टैलेंट के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू की गई और कुछ बातें हुई, लोग बातें सुन रहे थे, लेकिन उनसे मेरी यही दरख्वास्त थी कि आप फिल्म भी देखें और जब ये देखेंगे तो फिल्में बनेंगी और ऐसे सेशंस होने चाहिए, ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग होने चाहिए। लोग बहुत परसेप्शन लोगों का बहुत कुछ और है, परसेप्शन वाज़ेह होना चाहिए। पंजाब मास इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के इख्तिताम पर अलहमरा एक बार फिर फन, मुकालमे और तख्लीकी इजहार का मरकज बन गया। तायकीन ने उम्मीद जाहिर की कि ऐसे फेस्टिवल्स का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। रिजवान अली के हमरा जहन मदनी हुसैन, सिटी 42। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ने कस्टमर्स के लिए 50% तक की सेल लगा दी है। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ठोकर न्याज बेग में भी ग्रैंड सेल गाला। 19 अक्टूबर तक कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया इंतहाई कम कीमत में दस्तयाब होंगी। शहरियों ने अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स के इक़दाम को खूब सराहा। अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ने होम अप्लायंसेस पर ग्रैंड सेल लगा दी। 19 अक्टूबर तक सारिफीन को इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया बड़े डिस्काउंट के साथ दस्तयाब होंगी। इंतजामिया का कहना है महंगाई के आलम में होम अप्लायंसेस पर रियायत शहरियों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस है। 9 दिन की हमने सेल लगाई हुई है। ये साल में हम एक दफ़ा लगाते हैं, ग्रैंड सेल गाला इसका नाम है। ये हम लोगों का लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो महंगाई से तंग आई हुई आवाम है उसके लिए एक रिलीफ हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमारी शादियों का सीज़न शुरू हो गया, तो तमाम जो हमारी बहनें हैं या बेटियां हैं जिनके लिए सामान लेना चाह रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनके लिए आसानी हो। अल-फतेह के दीगर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स की तरह ठोकर न्याज बेग पर वाक़े स्टोर पर भी सेल गाला। मुख्तलिफ कंपनीज के वाटर डिस्पेंसर्स, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, माइक्रोवेव, रूम एयर कूलर्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, ब्लेंडर्स, फूड चॉपर्स, फूड प्रोसेसर्स, LEDs और AC पर 2000 से 35,000 रुपए तक की रियायत दी गई है। शहरियों ने रियायती कीमतों पर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की खरीदारी की और अल-फतेह के इक़दाम को सराहा। कहते हैं दीगर स्टोर्स पर अशिया महंगी मिल रही हैं, जबकि यहाँ एक की कीमत में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया खरीदी जा सकती हैं। बहुत अच्छा है अल-फतेह ने जो अप टू 50% ऑफ लगाया हुआ है। यहाँ एक ही चीज़ की प्राइस में हम 2 चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा है। मैं सबको यही कहूँगी आप लोग आए। ये बहुत अच्छा लोगों को दे रहे हैं डिस्काउंट, मेरे ख्याल में इससे वेल करना चाहिए सबको। 32 इंचज़ का एक टीवी था 25,000 में मिल रहा है। गीज़र मैंने देखा है जो कि 14,000 में मिल रहा है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि 2-3 चीज़ें मैंने खरीदनी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और काफ़ी सस्ती मिल रही हैं। मुख्तलिफ अशिया पर अल-फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर्स भी दी गई हैं। कैमरामैन वसीम निसार के साथ आदिया नाज, सिटी 42। ज़माना चाहे जितना भी बदल जाए, कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। मट्टी के गल्ले, वो छोटे से बर्तन जिनमें बच्चों के ख्वाब छुपे होते थे, अब वो मंजर तो कम नजर आते हैं, मगर यादें आज भी ताज़ा हैं। मट्टी के गल्ले के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। कभी मोहल्ले की दुकान से मट्टी का गल्ला खरीदना बच्चों के लिए किसी ईद से कम ना होता। चंद सिक्के संभालने से ज्यादा ये बचत का पहला सबक हुआ करता था। जब गल्ला भरता तो इसे तोड़ने की खुशी ऐसी लगती जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। इस बारे में शहरियों का कहना था कि हम तो ईद पर ईदी गले में डाल देते थे और जब तोड़ने का वक्त आता तो दिल खुशी से झूम जाता था। बचपन में हम मिट्टी के गल्लों में पैसे जमा करते थे। ईद वगैरह पे जब पैसे इकट्ठे होते थे तो फिर इस मिट्टी के गले में डालते हैं, तो जब इसमें पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जब हम इसको तोड़ते थे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। मुझे मिट्टी के गले में पैसे जमा करने का बहुत शौक है। मुझे बचपन से बहुत शौक है। मैं इसमें पैसे जमा करती हूँ। जब मैं इसको तोड़ती हूँ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। अब इन मिट्टी के गल्लों की जगह चमकते प्लास्टिक के गल्लों और डिजिटल वॉलेट्स ने ले ली है, मगर मिट्टी के गल्ले की सादगी, इसकी खुशबू और बचपन की मासूमियत अब भी दिलों में बाकी है। कुछ नन्हे बच्चे आज भी इस याद को संभाले हुए हैं, जबकि कुछ का कहना था कि हमने कभी मिट्टी के गल्ले में पैसे जमा नहीं किए। मिट्टी के गुल्ले में मैंने पैसे कभी जमा नहीं किए, प्लास्टिक के गुल्ले में जमा किए। मिट्टी का गुल्ला नहीं इस्तेमाल किया, लोहे का किया है, उसके अंदर पैसे डाले हैं। पैसे जमा करने का शौक है। मैंने मिट्टी के गमले में कभी जमा नहीं किए, मैं प्लास्टिक के और वो स्टील वगैरह उसमें करता हूँ। नई नस्ल को शायद मिट्टी के गल्ले की अहमियत समझ ना आए, लेकिन जिन्होंने इसे संभाला वो जानते हैं इसमें सिर्फ सिक्के नहीं होते थे, ख्वाब और चाहतें भी बंद होती थीं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42।
ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल और सीनियर नायब सदर मोहम्मद तनवीर के एजाज़ में अशाया तकरीब में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन अहद अमीन भट्ट समेत ताजरान ने शिरकत की। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से मुनक्दा अशाये का एहतमाम HN फूड MM आलम रोड पर किया गया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर शेख मोहम्मद तनवीर, EC मेंबर अब्दुल मजीद शरीक हुए। शबीर हीरा भट्टी, बाऊ मोहम्मद बशीर, ख्वाजा शाह ज़ेब अकरम, फाउंडर चेयरमैन फराया अदनान, खालिद बट ज़शान, सुहेल मलिक शरीक हुए। अरशद बेग, साबिक QC चेयरमैन अमजद बिल्लू, शिराज बशीर, चेयरमैन हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन पंजाब एहसानुल्लाह समेत ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अब यहाँ पर आपको बताएं, फास्ट फूड ब्रांड चीज़ियस की प्रीमियर लीग सीज़न 4 का फाइनल अलीम डार अकेडमी में होने वाली प्रीमियर लीग में चीज़ियस के तमाम ब्रांचेस ने शिरकत की। फाइनल में DHA ब्रांच ने जेल रोड ब्रांच हरा दिया। अलीम खान अकेडमी में होने वाली चीज़ियस की प्रीमियर लीग सीजन 4 के फाइनल में CEO इमरान इजाज ने खसूसी शिरकत की और कहा चीज़ियस के तमाम मुलाजमीन के लिए प्रीमियर लीग करवाना बेहतरीन एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी हम अपने एम्प्लॉइज़ की वो कह लें कि रिफ्रेशमेंट के लिए करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये चौथा सीज़न चल रहा है और ये इंशाल्लाह जब तक चीज़ियस है ये सीज़न चलते रहेंगे। ये कारवां बढ़े, वो मैच कोई 4 से 6 टीम से स्टार्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 12 से 14 टीम्स पे पहुँच गया है। समाजी रहनुमा शाहिद कादर ने भी चीज़ियस के इस इकदाम को सराहा। चीज़ियस ने इंटरटेनमेंट के लिए साल में एक मरतबा ये करते हैं और अलीम डार अकेडमी में करते हैं और इससे रिफ्रेशमेंट मिलती है मुलाजमीन को जो साल भर का उन्होंने काम किया होता है। प्रीमियर लीग में DHA ब्रांच और J रोड ब्रांच के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। DHA ब्रांच की टीम ने J रोड ब्रांच की टीम को शिकस्त दी और ट्रॉफी अपने नाम की। चीज़ियस प्रीमियर लीग सीजन 4 में MD अदनान इजाज, डायरेक्टर ऑपरेशन रिजवान इजाज, मलिक ताहिर सरवर मीर और नसीर वागा समेत दीगर ने शिरकत की। फातह टीम को कैश प्राइजेस और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा तुकीर अकरम, सिटी 42। मौसम सर्द हुआ तो खाने पीने के शौकीन अफराद भी फूड पॉइंट्स पर मज़े मज़े के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने पहुंच गए। शहरी कहते हैं सर्दियों में बारबेक्यू और फिश खाने का मज़ा ही अलग है। मौसम में खनकी आई तो शहरी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा फूड पॉइंट्स का रुख करने लगे। वाल्टन में वाक़या फूड पॉइंट पर शहरी कड़ाही, बारबेक्यू, गोला कबाब और मछली के शौकीन अफराद दावतें उड़ाने में मशगूल हैं। शहरी कहते हैं मौसम सर्द हुआ तो फैमिली के साथ बारबेक्यू और फिश खाने आए हैं। गर्मी में ऐसे खाने नहीं खाए जाते, सर्दियों में फिश और बारबेक्यू का मजा ही अलग होता है। खाना मंगवाया, हांडी मंगवाया, उसके साथ बारबेक्यू मंगवाया और जितनी दफ़ा हम यहाँ पे आए हैं इनका हर दफ़ा टेस्ट सेम ही होता है। इनका खाना बड़ा बेहतरीन होता है। इनके कबाब, ये टिक्के मज़े के ये देख रहे हैं आप, मलाई बोटी देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं, बड़ा माशाल्लाह टेस्टी होता है। इनका एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। फूड पॉइंट्स इंतजामिया का कहना है कि गर्मियों में वो रश देखने में नहीं आता जो सर्द मौसम के आगाज में हो जाता है। जब मौसम चेंज होता है तो लोगों के जो जज्बात होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मोस्टली बारबेक्यू और फिश ज़्यादातर आपको पता है सर्दी का मौसम आ रहा है तो ज़्यादा यूज़ होता है। इस वजह से हमारे पास जो ज़्यादा बारबेक्यू में मलाई बोटी, टिक्का बोटी और जो मलाई पीस है टिक्के का वो ज़्यादा यूज़ होता है और फिश बहुत ज़्यादा ग्रिल जो होती है फिश वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लाहौरी खाने पीने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। यही वजह है कि मौसम सर्द हो या गर्म, लाहौरी एंजॉयमेंट के लिए निकल ही पड़ते हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।